So why don't you try and speak in your own language, and if somebody has an issue, then they would ask you. So language barrier is a real thing. Because of language barrier you can also face some frustration, क्योंकि आप कहना कुछ और चाह रहे होते हैं and the other person is understanding something else. So obviously language barrier वाला factor हम इसमें नहीं इसको factor in नहीं करते, क्योंकि let's suppose if somebody is fluent in English, fluent in Urdu, but they go to a country where everybody speaks Spanish, then they will have a difficult time communicating with those people. So none of these rules would apply to any of those things, because other people might just understand some words of what you are saying. It is also an important factor that we keep in mind, so that यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं, I try to communicate in both the languages. Usually मैं जो बात इंग्लिश में करता हूँ वही कोशिश करते हैं कि यहाँ पे उर्दू में भी कर दें, या जो अगर किसी को नहीं समझ आती तो उनको अलग से बंदा पंजाबी में जिस भी लैंग्वेज में है उसमें बात कर लेनी चाहिए. As valid as your point is, you can have some people here जो आपकी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं. There are many, like except for a few people, the rest might just be fine with English and you can communicate your words in English. वो वाला पॉइंट हम इसमें नहीं फैक्टर इन कर सकते, क्योंकि अगर आपका लैंग्वेज बैरियर है किसी के साथ, तो हो सकता है कि एक तो उनको समझ ना आ रही हो, दूसरा ना समझ आने की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही हो. आपकी फ्रस्ट्रेशन से आपके जो कम्युनिकेशन है वो और ख़राब हो जाएगी. बट सिंस यू आर हेयर फॉर learning, while you are here, try to also learn the skill of this other language that you are not very fluent in, which is Urdu, जो कि आपको यहाँ रहते हुए ज़रूरत तो पड़ेगी. So you can instantly clarify. The next skill that I am going to talk about is contrasting. ठीक है, contrasting एक ऐसा skill है जिसमें आप लोगों को clarify करते हैं, जो भी उन्होंने आपकी बात को समझा है, अगर वो गलत समझा है तो उसको करेक्ट कर दें. That means that you use the word don't and do in a sentence by saying I don't mean this, I meant this, right? So instantly अगर हम किसी को clarify कर दें कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था, तो अगर किसी को बुरा लगा है और किसी को गुस्सा आया है तो वो उसी वक्त सेटल डाउन हो जाएगा. But how many times do you see people clarifying things there and then? कितनी दफ़ा होता है कि हम लोगों को कोई अपनी बात जो उनको गलत समझ आई हो वो उसी वक्त clarify कर दें. But do you think that if you instantly clarify they would get better? So use contrasting. When you say that you said something, they perceived it wrong, try to correct them and also explain क्योंकि मेरा language barrier है. Also explain the reason, अपनी वजह बता दें. अगर आप लोगों को ये reason भी बता देना कि I was having a bad day, which is why I said this, but I didn't mean this, I meant this. तो even then they would understand. अगर आपका बुरा दिन जा रहा था, अगर आपका तबीयत ठीक नहीं थी, अगर आपका मूड ख़राब था, or you just heard a bad news, people would get the reason as long as you give them the reason. So whether you had a language barrier, whether you had a bad meeting, whether you had a terrible sleep last night, जो भी reason आप दोगे, whatever reason you'll give them, they'll get it most of the time. And in response to this thing called contrasting, where you use don't and do in a same sentence, that I don't mean this but I did mean that, most of the time people would understand and let it go. But why do you think we don't explain there and then? हम क्यों नहीं उसी वक्त अपने आप को clarify करते? That is the reason that instantly, first of all, we don't realize our own mistake ourselves instantly. हमें नहीं पता लगता कि हमारी उस वक्त गलती क्या है. Reason being that your human brain doesn't work instantly. So has the concept of a chimp brain and human brain been explained? किसी कोई मुझे बताएगा कि वो क्या है concept? Anybody, somebody? कि वो क्या होता है? Human brain and chimp brain, what does that do? How does it work?
since you are all saying कि it has been explained. सब कोई एक एक दो points इसी तरह देते जाएं. So you said लॉजिकल रीजनिंग ह्यूमन ब्रेन करता है, चिम्प ब्रेन नहीं करता. आपने क्या कहा? मैंने कहा चिम्प ब्रेन जो होता है आपका वो सर्वाइवल ब्रेन होता है. आई एम इम्प्रेस्ड दैट एवरीबडी हैज एन आइडिया ऑफ दिस प्रीटी गुड. एक थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, इट्स नॉट स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन ब्रेन, इट्स फास्टर देन ह्यूमन ब्रेन. इट्स नॉट स्ट्रॉन्गर. सो फास्टर का मतलब ये है कि वो जल्दी से एक्ट कर देता है, और ह्यूमन ब्रेन जो है वो even though it's bigger in size and it may be stronger but it's not faster, so it works later on. थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को रियलाइज करने में. अगर ऐसा ना हो तो हम कोई गलती एज सच ना करें, क्योंकि अगर हमारा इंस्टेंटली ह्यूमन ब्रेन काम करता हो तो देन वी वुड नो ये काम करने वाला नहीं है एंड वी वोंट डू इट. हम नहीं करेंगे. इट्स बिकॉज चिम्प ब्रेन इज फास्टर, ह्यूमन ब्रेन इज स्लोअर. वी मेक अ मिस्टेक, later on realize that it was wrong. मुझे नहीं करना चाहिए था. Chimp brain immediately acts. Immediately in a situation where you need it, it acts. Happens a lot of the time in conversations. जिसकी वजह से मैं इस point को बीच में लाया था कि ये जो assertive communication है, ये सीखने के लिए आपको ज़रूरी है that you start making your, trying to make your human brain faster. Make your human brain you practice enough so that it becomes a little faster, ताकि जो चीज़ आपको आधे घंटे के बाद रियलाइज़ होनी है वो आपको फ़ौरन से रियलाइज़ होने लग जाए. You will always naturally act out from your chimp brain, but you can increase the speed and pace of human brain so that it can quickly make you realize. आपके emotions के बावजूद आपको फ़ौरन पता लग जाए ये गलत है. Because human brain can never tell people to damage themselves, harm themselves or others, break their belongings, scream out loud, fight with somebody physically or screaming and verbally. Human brain कभी भी ये नहीं कहेगा. वो आपको ये सारी चीज़ें याद दिला देगा. वो आपको बताएगा कि ये इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इस चीज़ का फ़ायदा है, ये करो ये ना करो. It will tell you, but the problem is it only tells you a bit later. अभी आप कह रहे थे that you smoked last night, your mother was saying. Human brain would not let him do that. नहीं, उसको आप impulsive ना होने पे ट्रेन नहीं कर सकते. मैंने बताया कि आप ह्यूमन ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि वो उसकी पेस मैच करने लगे, उसके करीब आ जाए. Your impulses might always tell you the same thing. अगर किसी का कोई थोड़ा वायलेंट टाइप का चिम्प ब्रेन है तो उसको हमेशा आइडिया वही आएगा पहले. बस ये है कि उसको जल्दी से ट्रेन करना है ह्यूमन ब्रेन को कि वो उस आइडिया को टैकल कर ले, वहीं पे उसको रोक दे. सो इवन दो आपके माइंड में एक आइडिया एक तरफ से आए कि मुझे ये करना चाहिए, दूसरी तरफ से आइडिया है ये नहीं करना चाहिए, वो फ़ौरन आ जाए तो बेस्ट है. वो आधे घंटे बाद, वो एक घंटे बाद, एक दिन के बाद आए तो ऐसा ना हो. आप अपने ह्यूमन ब्रेन को तेज़ कर लें. सो यू कैन, in one word you can say, you can tame your chimp brain by that. Taming would mean that the idea would come but you would not act upon it. आइडिया आएगा माइंड में, एक कॉन्वर्सेशन होगी अपने दिमाग के अंदर कि मैं अभी ये करके दिखाता हूँ गुस्से में कोई चीज़, बट सडनली योर ह्यूमन ब्रेन वुड से ये ना करो, इसका नुकसान होगा. लेटर ऑन यू विल फेस सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस. You shouldn't do it. So if somebody has an idea of withdrawal, let's say, relapse, कि वो कोई ड्रग है या कोई सिगरेट है या कोई और चीज़ है कि वो करना चाहता है, इंस्टेंटली उसका ह्यूमन ब्रेन उसे कैलकुलेट करके अगर बताए इसका नुकसान है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ये चीज़ें होंगी which you don't want. So the idea came but you didn't act upon it. ठीक है, एक्शन नहीं लिया आपने. It did come in your brain. So you can't change someone's chimp brain like you can't change someone's eye color. You're born with it. The kind of personality that your chimp has, you're born with it.
but the human brain and the computer brain, between the two of them, they can try to beat the chimp brain. Does that make sense? मेरा मकसद था करता क्या है, मकसद क्या है? So whatever we are talking about here, where is it going? आप लोगों के दिमाग में वो कहाँ जा रहा है? जो हम लोग यहाँ बात करते हैं, your computer brain retains information या store करता है information को. It contains computer, चले आपको हार्ड डिस्क कह लें, हार्ड, ठीक है. So जो कुछ आपने सीखा, whatever you are learning from behavioral experiences, trainings, classes, books, observation, जो भी आपने कहीं सीखा है वो वहाँ जाता है, सही है. उसकी वजह से आपको पता लगता है क्या सही है क्या गलत है. मतलब when you were born and you were growing up, कभी किसी ने तो बताया होगा कि झूठ बोलना गलत है. You didn't naturally know. आपको खुद से नहीं पता था कि ये गलत है. Somebody told you. All the wrong things that are in the world, हमें क्या क्या गलत गलत चीज़ें बताया गया कि ये नहीं करने वाली. Lying, stealing, ड्रग्स, ये हमारे जो एड कैंपेन्स चलती हैं, जो सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, जो टेलीविज़न पे चीज़ें आती हैं, व्हाट आर दे ऑल डूइंग? अच्छा, जो स्पॉन्सर्स एड्स लगाते हैं चीज़ों के टू प्रमोट what they want to sell for you to buy, so all of that, they are targeting your computer brain. जो advertisements आती हैं, they are all trying to put it into your computer brain, so next time when you go into the grocery store, you remember that, you pick it up. आपकी computer brain को target करते हैं. अच्छा, जो laws हैं, rules हैं, warnings हैं, what are they doing? Putting it into your computer brain. आप किसी फंक्शन को अटेंड करने किसी वेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे रूल्स लिखे होते हैं. Those rules are implemented within those boundaries. So what they are telling you is that maybe whatever you keep doing outside these boundaries is right, but within these boundaries, these are the rules. So then you remember within those boundaries कि ये गलत है. For example, आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, कहीं पे कैमरा यूज़ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, पिक्चर लेते हैं, बट देयर आर सम प्लेसेस जहाँ लिखा होता है कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है. दे आर टेलिंग योर कंप्यूटर ब्रेन कि वैसे तो करते रहते हो एंड इट्स ऑल राइट, बट हेयर इट्स नॉट. सो यू यूज़ योर कंप्यूटर ब्रेन. नाउ इवन दो यू माइट सी समथिंग दैट यू वुड लाइक टू कैप्चर, इंस्टेंटली आपका दिल करेगा इसको पिक्चर ले लूँ, देन यू वुड रिमेंबर लिखा हुआ था अलाउ नहीं है. जो थॉट आएगी वो चिम्प ब्रेन से आएगी. जो आपको रिमाइंडर आएगा वो आपके कंप्यूटर ब्रेन से आएगा. ये अलाउड नहीं है, यहाँ पे नहीं कर सकते, चिम्प ब्रेन से आएगी. दैट मीन्स चिम्प ब्रेन जीत गया. वहाँ पे आपका कंप्यूटर ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन दे लॉस्ट. सो the purpose of telling this was that with the combination of human brain and computer brain, you can beat the chimp brain in making your decisions. आपको पता होगा कि ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं करनी चाहिए. जैसे there are a lot of things that within willing ways that we tell you that ये नहीं करने वाली. So अगर कोई अपने पास रखे उस ड्यूरेशन में, अगर कोई टेम्प्ट हो अपने पास रखने के लिए, तो that would be the thing of chimp brain. और हर दफ़ा याद रखना कि नहीं यहाँ मैं एंटर हो गया हूँ ना, these rules apply, then following them, that means you're trying to tame your chimp brain अपने ह्यूमन और कंप्यूटर की वजह से. So which is why people tell you to get more and more training, grooming lessons. आप 100 दफ़ा कोई चीज़ अटेंड करेंगे, कोई क्लास 100 दफ़ा आप अटेंड करेंगे, कोई अच्छी बुक 10 दफ़ा आप पढ़ेंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं राइट टाइम पे उसका इनपुट आने के. द चांसेस वुड इंक्रीज. मैं एक दफ़ा एक कोई किताब पढ़ ली, भूल गया, अब बार बार मुझे उसमें से कोई अच्छा पॉइंट याद आए थोड़ा मुश्किल है. आई हैव टू री डू इट अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन. आई हैव टू गो थ्रू इट. ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने कंप्यूटर ब्रेन में ऐसी इंफॉर्मेशन डालनी है जो मुझे हेल्प करे. आपका जो ह्यूमन ब्रेन है
उसको सपोर्ट मिलती है कंप्यूटर ब्रेन से। सो जब आप कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, फीड करते हैं, दैट हेल्प्स यू इन द लॉन्ग रन। इसलिए कितनी दफ़ा होता है हमें कोई चीज़ पता होती है तो हम कहते हैं कि ये तो मुझे पहले से पता है, मुझे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से देखो, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे कि दैट ही डज दैट, बट despite this thinking of yours, does it happen that you still learn something from people that you didn't want to? I do. A lot of times people come in here in indoors where they didn't want to, or if they wanted to, now they don't anymore. कई दफ़ा स्टार्ट ही कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता, कई दफ़ा कोई स्टार्ट करता है तो फिर वो उसके बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बट इवन देन इट वर्क्स, इवन देन इट हेल्प्स। अगर आप कहीं बैठे हैं, यू विल स्टिल लर्न समथिंग फ्रॉम देम। इसका एक ऑपोजिट भी है जिसको भी अक्सर लोग मानने से इनकार करते हैं। जब हम कहते हैं दैट यू हैव टू लीव अ सर्टेन कंपनी टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स और स्टे अवे फ्रॉम बैड थिंग्स, दे आर लाइक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल, मैं उन्हीं दोस्तों से मिलके भी नहीं करूँगा। दैट डजंट हैपन। पीयर प्रेशर वर्क्स, कंपनी ऑफ फ्रेंड्स वर्क। When somebody is made to sit in with people who are a positive influence, ना चाहते हुए भी they will learn something positive. और अगर किसी को ऐसे लोगों के पास बिठा देंगे जो स्लिपरी हैं, जिनमें टेंडेंसी है, डेंजरस टेंडेंसीज हैं, अगेन ना चाहते हुए भी वो उसको सीख लेंगे। सो मेकिंग योर कंपनी is a very important factor. ये हम वो there's this another training which is called 6 most important decisions by teenagers. So जिसमें से 1-2 decisions इन्होंने बताया, choosing your friends, choosing your schooling, educational institute, उन सारी चीज़ों का ताल्लुक इस बात से है that what kind of people do you surround yourself with. And in the present time, it's not only the people, it's also the media and social media that you kind of surround yourself with, which is important for parents for their children at a younger age कि वो अपने बच्चों को किस किस्म का कंटेंट दिखाते हैं या देखने देते हैं या किस किस्म का कंटेंट नहीं देखने देते, which is getting more and more difficult for them to control now that everything, it's getting complex now that everything is getting everywhere, phone पे, tablets पे, television पे. There was a time there used to be a lot of parental control on things, but now it's very, very difficult. So now, like I said, it's not just the friends and the people you surround yourself with, it's also the content that you consume online. तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा as parents लोगों को ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, because very often parents are thinking that now they are so young that they still have time के बाद में कंट्रोल कर लेंगे, but they don't get to know कि वो कब उस कंट्रोल में से बिल्कुल चीज़ बाहर निकल जाती है। बच्चों की असल में जो बच्चों का जो ब्रेन है, बच्चों का जो माइंड है, it's not trained enough to choose the right kind of thing. So initially adults are supposed to kind of filter out what children get to see and watch. फिर जब वो थोड़ा बड़ी एज हो जाती है, जब वो लेटर टीन एज या 20s के ऊपर आ जाते हैं, देन यू कैन हैव योर ओन चॉइस. बट डू यू थिंक दैट अ 9 or 10 year old knows what's best for them? नहीं ना. तो वहीं से मामला सारा स्टार्ट होता है ना, 6, 7, 8 इस एज से, बल्कि इवन यंगर नाउ, कि वहाँ से यू स्टार्ट टू गिव देम सम फिल्टर्ड स्टफ, बिकॉज एवरीथिंग आउट देयर यू कांट गिव देम. आप मूवीज भी देखते हो, मूवीज के भी शुरू में एक वार्निंग नहीं होती है एज की, डिस्क्लेमर आता है वो एज का. तो क्यों आता है आपको? बच्चों की मर्जी है, वो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे वॉच, तो उनकी मर्जी है, तो उन पे छोड़ दें. ऐसा होता नहीं है. इवन दो स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे जाके करने की अगर सही एज में कर लिया है. और अगर सही एज में सही टाइम पे नहीं किया तो फिर आगे जाके काम करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टू वर्क विद टीनेजर्स इन लेट टीन एज और अर्ली 20s, क्योंकि आपने पहले नहीं किया.
Unfortunately, this is true, but that is how it happens, that after a certain age, children start thinking that they don't need their parents or adults from home. They can make their own decisions, but which is where all the parenting skills come into place. Parents need to change their tactics towards their children. उनके साथ एक certain age पे there needs to be some sort of friendship as well. There needs to be some disciplining with rewards and friendship. सारा कुछ साथ में चलना होता है, so that your bond doesn't get broken with time. And the most difficult time for parenting is teenage. It's a well known fact कि teenage में it gets very difficult to connect with them. You can't understand them how you used to. So it also has to do with the fact that parents tend to forget the time when they were teenagers. They don't understand their children anymore because उन्हें अपना time याद नहीं होता. So keeping to remember those times where you were younger, that also helps. We'll talk about parenting in some other in some other week. लेकिन parenting is also a very very important thing that children and parents both need to understand कि वो किस तरह से होती है. So here what I was saying was कि जो आपका सर्कल है वो बहुत मैटर करता है कि आपने अपने इर्द गिर्द किस तरह का सर्कल बनाया है. आप इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से ना चाहते हुए और ना आपको पता होता है. You don't know about it. When do they influence you? अगर आप 3-4 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक 5वां इंडिविजुअल उसमें आ जाता है, विद इन डेज यू वोंट नोटिस बट थिंग्स चेंज्ड. यू स्टार्टेड लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम दिस न्यू पर्सन. सो ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर अ बेटर इन्फ्लुएंस. ऑल्सो मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज एनी एज वेयर पीपल शुड थिंक दैट दे नो इनफ. We should always be open to more information कि हम और सीख लें और कहीं से पता लग जाए. Because like I said, we also forget what we learned. How do we overestimate our powers when we think कि मैंने ये ट्रेनिंग कर ली हुई है, एक दफ़ा काफ़ी है. Why do we overestimate ourselves then? We don't need to. We should always remember that we tend to forget. Our computer brain is not like actual computer where things don't get deleted. हमारे माइंड में से या वो डिलीट हो जाती हैं जब आपके ब्रेन को लगता है कि वो इनसिग्निफिकेंट है, या वो बहुत पीछे के किसी फोल्डर में चली जाती है जहां से आप उसको रेडिली एक्सेस नहीं कर सकते. बाय गोइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, गोइंग थ्रू इट ओवर एंड ओवर अगेन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रीड अ बुक एंड इट्स अमेजिंग, ट्राई टू मेक पॉइंटर्स आउट ऑफ दैट बुक इन अ समराइज्ड फॉर्म फॉर योरसेल्फ. कोई किताब पढ़ी है, उसमें अच्छे पॉइंट्स हैं, उसमें से निकाल के अपने हाथ से सेपरेटली लिख लें, तो नेक्स्ट टाइम आपको किताब ज़रूरी नहीं है पूरी पढ़नी पड़े, अब आप अपनी समरी पढ़ सकते हैं. सो दैट वे यू डू सेव योर सेल्फ सम टाइम. यू डोंट नेसेसरली नीड टू गो थ्रू होल थिंग अगैन. यू नीड टू मेक सम शॉर्ट फॉर्म, समराइज्ड फॉर्म पॉइंटर्स आउट ऑफ इट जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप रेडिली इसको एक्सेस कर सकें. इसी तरह इन सेशंस में बैठे हुए सम पीपल आर राइटिंग डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अ लॉट ऑफ अदर्स आर नहीं, मैं माइंड में ही अपने रख लूँगा, हो जाएगा, दैट्स गुड इनफ. बट इट हेल्प्स. You know what other thing helps is involving more and more senses of ours into learning something. When more senses are involved into something, you tend to remember things longer. इसका मतलब है listening हो गया एक, but when you also teach that thing to somebody else, that means speaking is also involved. आपने सीखा फिर आपने जाके किसी और को सिखा दिया. That tends to keep it in your mind for longer. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये एक बार सीखी हो फिर भूलती नहीं है. वो क्या क्या चीज़ें हैं? और जैसे स्विमिंग, ड्राइविंग, जिसमें आप गौर करें तो आपकी सारी सेंसेस यूज़ होना शुरू हो जाती हैं आपकी. उसमें आपने पहले सुना होता है, फिर आपने अपनी टैक्टाइल सेंसेस को यूज़ करके वो चीज़ किया होता है. यू सी थिंग्स एज वेल.
जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, आप उसको भूलते नहीं. टीचिंग समबडी समथिंग दैट यू जस्ट लर्नड मेक्स यू नेवर फॉरगेट इट. सो आपने अभी कोई चीज़ सीखी है, इफ़ यू गो एंड टेल समबडी अबाउट इट, देन टेल अनदर पर्सन अबाउट इट, देन यू वोंट फॉरगेट. जैसे कि मैंने ये जो चिम्प ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने पढ़ा था, फिर मैंने आप लोगों को कम्युनिकेट किया, कन्वे किया, कोशिश किया बताऊं, समझाने की कोशिश की. अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही भूल जाऊं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने उसको, चांस है लेकिन मुश्किल है. ही सेड मुश्किल है, क्योंकि पहले मैंने खुद सीखा, फिर मैंने किसी को सिखाया, फिर किसी के सवाल जवाब का आंसर भी किया, उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश की. माई ब्रेन इज स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मुश्किल है कि मैं भूल जाऊं, अनलेस कि मैं कई सालों तक इसके ऊपर कुछ बस देखी होंगी. अगर आपने किसी देखी भी हो, फिर आपको इतनी पसंद आई हो कि आपने उसके बारे में किसी को बताया भी हो, फिर किसी और को बताया हो, तो फिर आपको वो याद रहेगी. सो ट्राई टू वन लिसन टू दीज ट्रेनिंग्स, देन हो सके तो नोट डाउन किया करें अपने ओन इन योर ओन वर्ड्स टू मेक इट शॉर्टर, समराइज्ड. और हो सके तो किसी को जो है वो सिखाने की भी कोशिश किया करें. ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म, डू यू नो दैट देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पॉन्सर. और स्पॉन्सर का क्या काम है? जो उसने सीखा होता है वो आपको प्रोवाइड करता है. बेसिकली वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो उन्होंने ट्रेनिंग में लाए हुए हैं कि एक को सिखाया, अब उससे कह रहे हैं वो आगे सिखा दे, उससे कह रहे हैं वो आगे सिखा दे. एक तो इट मेक्स द जॉब ऑफ प्रोफेशनल्स ईजियर बिकॉज नाउ द वर्क इज बीइंग शेयर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. दूसरा ये है कि जिसको आपने सिखाया उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो चीज़ आ जाएगी जब वो आगे 10 को सिखाएगा. सब कुछ उसके ऊपर नहीं छोड़ा हुआ, सब कुछ उसके ऊपर नहीं छोड़ी हुई चीज़. लाइक you have their support into the system but not necessarily that they are your lead counselor. वो नहीं होता, लेकिन एक सपोर्ट होती है, उसको कहा जाता है कि वो आगे सिखाए, but you still have professionals there for help. तो कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है that someone who was supposed to help, जो स्पॉन्सर खुद था, sometimes they need help from their sponsee. वो जो नीचे उनके है वो उनको कई दफ़ा मदद कर देता है, because at the end of the day वो खुद भी तो सीख ही रहे हैं और उनको भी हेल्प चाहिए हो सकती है. So sometimes the person they were helping ends up helping them. Again, the concept of trying to teach somebody by asking them to teach others. दूसरों को सिखाएं, जो चीज़ आपने लर्न की है वो किसी और को, एक को ज़रूर बताएं. देखो, आपको जो चीज़ आगे सिखाने को कह रहे हैं ना, वो होती हैं नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ें. जैसे कि अगर आप किसी को असर्टिव कम्युनिकेशन की कोई पॉजिटिव टॉपिक्स बता रहे हैं, देयर इज़ नथिंग, देयर कांट बी एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट. ठीक है. सेकेंडली, अगर आप किसी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मुझे ये हेल्प करता है इन ऑर्डर टू स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग, अगेन देन यू आर सेइंग मुझे ये हेल्प करता है, नॉट नेसेसरीली कि ये ओवरऑल सबके लिए हेल्प करने के लिए है. सो देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ पर्सनलाइज्ड ओपिनियंस इनटू दिस थिंग, जो कि अगले को भी पता है कि ये जो बता रहा है ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से बता रहा है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है. एंड देयर इज़ नो हार्म in my opinion in teaching whatever you learnt from somebody, passing it on to someone else. It's always beneficial क्योंकि आपकी अपनी मेमोरी पक्की होती है, आपके अपने जो होती है ना कुछ confusions वो भी clear हो जाती हैं. Sometimes when you learn something, then you go back and teach it to somebody else. Some questions arise in your own brain again, जो आपको समझ नहीं आए थे. That helps you understand even better. So next time you can raise those questions. जैसे आपने आज assertive communication के बारे में, passive aggressive communication के बारे में जो भी सीखा, let's say you discuss it later on. It will raise some questions in your head. Next time you can clarify those questions. How many times do you people go upstairs and discuss something that was taught down here? Not many times, right? But you should. करना चाहिए. While sitting upstairs in the session hall or together somewhere, आपको अगर कोई चीज़ यहाँ की समझ नहीं आई है उसको डिस्कस करना चाहिए, so that next week you can ask more questions about it.
interactive sessions में there is always more learning. So all about assertiveness, passive aggressiveness and the chimp brain. I hope that you get to discuss these things upstairs. Next week when we come back on Monday, आपके पास कुछ questions होने चाहिए for us to answer. Right? Next Monday को I want to be able to answer a bunch of those questions of yours जो कि आप कर सको. So have some and discuss it amongst yourselves ताकि जो चीज़ नहीं समझ आई आपको पता लग जाए.